ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ. آپ آئیے پلیز, میڈم اقبال بھی یہیں ہیں. ہاں, کیا واقعی؟ وعلیکم السلام. ویسے آپ دونوں تو سمدھنے ہو گئی ہیں نا؟ ہائے, نوجوانوں نے عشق کیا اور کورٹ میرج کر لی, لیکن اگر آپ ان لوگوں کو کنونس کر لیں تو میں آپ کی بیٹی کو بڑی خوبصورت دلہن بناؤں گی. یہ بات تو لالے اور چنار ہی جانے. میم, ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کی آمدنی کے لیے کچھ بیچز رکھے ہیں, آپ دیکھنا چاہیں گی؟ ہاں, کیوں نہیں, میں ابھی آتی ہوں. اوہ, میڈم ریحان بھی آئی ہیں. خوش آمدید. شکریہ. آئیں پلیز. تم تو نہیں آنے والی تھی, لیکن میں آ گئی. مارن جمیلہ کا فیشن شو مس نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ, اچھا ہوا آپ آ گئیں, مجھے بہت اچھا لگا. جمیلہ میڈم, کیا آپ پلیز میرے ساتھ آ سکتی ہیں؟ I'm sorry, مجھے بلایا جا رہا ہے. بالکل میری جان, تم جا سکتی ہو. میں نے دیکھا تھا آپ کی وہ آئی تھی. کون؟ ایسے مت بنیے جیسے آپ کو کچھ معلوم ہی نہ ہو. زمرد تاشکران آئی ہے. گھٹیا عورت. وہ گھٹیا عورت چنار کے ذریعے اپنا محل بچانے کی کوشش کر رہی ہے. کیسے؟ بہت آسانی سے. آج بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں یہی تو ڈسکس ہوا تھا. چنار ادائیگی کرے گا اور ضبطگی ختم. نجیب کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ وہ کیا کہیں گے, یہ تو آپ جانتی ہیں. چنار کے دماغ میں جو گھس جائے وہ کر کے رہتا ہے. دیکھو چنار, میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں, ایسا نہ کرو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے. میں یہ تاشکران خاندان کے لیے نہیں کر رہا ہوں چاچا, اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہوں. پیار کرتا ہوں میں اس سے, مستقبل میں میرے بچوں کی ماں بننے والی عورت کے لیے کر رہا ہوں. کیا تم اپنے پیار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ کیا ہماری کتاب میں ایسا نہیں لکھا چاچا؟ کبھی کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہم بہت بے بس ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے حال پر افسوس ہے. تم بالکل اپنی ماں کی طرح بول رہے ہو. اچھا کہا تم نے, تمہیں ایسے لوگوں کے حال پہ افسوس ہے. آپ نے مجھے اس سلسلے میں بہت مایوس کیا چاچا. مجھے لگ رہا تھا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, پر میں غلط تھا. لیکن میں جو بھی جانتا ہوں وہ سب آپ ہی نے تو مجھے سکھایا ہے. آپ تو مجھے سمجھیں. میں سمجھتا ہوں, کیسے نہیں سمجھوں گا. عاشق کے سامنے نہ کوئی اندھا نہ کوئی بہرا ہو سکتا ہے. اور میں نے تمہیں باپ کا پیار دیا ہے چنار, کیونکہ اللہ نے اولاد سے محروم رکھ کر مجھ سے اس زندگی میں امتحان لیا ہے. آ جاؤ, ہمیں اداس مت کرو. جس راہ پہ تم چل رہے ہو چھوڑ دو اسے. اپنے ہی الفاظ واپس لے لیں. لالے میری بیوی ہے, اس کے لیے جان دینی پڑے تو دے دوں گا. میں اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتا. میں سب کچھ لٹا دوں گا اسے خوش دیکھنے کے لیے.
वहाँ से क्यों चली आई? जी हाँ, अंदर बहुत गर्मी है। यहाँ के लिए इस कम्युनिटी में आप अजनबी हैं। मैं साहिल पर आई हुई मछली नहीं हूँ। मैं जिस माहौल में जाती हूँ उसे आसानी से अपना लेती हूँ मिसेज इकबाल। कायसरी में जो कुछ आपने किया, आपके कारनामे हमने मैगजीन में पढ़े थे। जो आपने पढ़ा कि आपको उस पर यकीन है? हाँ, सच होगा। तजुर्बे से मुझे अब यकीन हो गया है। समझी तो? क्या मतलब है आपका? तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को फांस लिया है। जो होना था वो हो चुका, लेकिन तुम जिस जगह गिरी हो ज़मरुद खातून, उसी जगह रहोगी। और ये तुम्हारी सोच है ज़मरुद खातून कि तुम मेरे बेटे को इस्तेमाल कर लोगी, तो गलत है। हर चीज की एक कीमत होती है। आपका बेटा ये कीमत अदा कर रहा है। हद तक कि सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, आप भी अदा कर रही हैं। मिसेस इकबाल, खूबसूरत चीजों का पैदाइशी मालिक होना, जैसे कि हम, या बाद में उनको खरीद कर उनका मालिक बनना, जैसे कि आप। जल्दी से मुझे ऑफिस ले चलो। आपसे जान पहचान करने का मौका नहीं मिला। मैं रेहान अलगाज इल्जेसू हूँ। खुशी हुई। मैं चिनार की फुप्पो हूँ। अच्छा, कुछ देर पहले आप मेरी भाभी इकबाल से बात कर रही थी। जी हाँ। आपका काम मुश्किल है। कौन सा काम होना? आपकी बेटी की जिस खानदान में शादी हुई है उसको डील करना, यानी हम, मतलब अलगाज। मेरी जगह मेरी भाभी होती तो कहती कि हम कोई आसान मुखालिफ नहीं है आपके लिए। याद रहे, हमारी और उनकी आदतों के अंदाज में वाज़ेह फर्क है। मुझे उन लोगों में से बिल्कुल ना समझिएगा ज़मरुद मैडम। मुझे इजाजत दें। फैशन शो स्टार्ट हो रहा है, चलो चलते हैं। क्यों नहीं? हम इस मौजू पे बात अगले हफ्ते। नजीब, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, और तुमसे भी चिनार। प्लीज आप लोग जा सकते हैं। जेंटलमैन, हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। क्या हुआ अम्मी? क्या उन्होंने तुमसे कोई जहेज के लिए पैसा मांगा है? क्या तुम खजाने लुटा रहे हो ताशकरानों की लड़की पर? बहुत हो गया। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस मौजू पर बात रुको करने जरा, में। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चिनार तो वैसे भी हमसे रिश्ता तोड़ चुका है। बेटा, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या कर दिया है उन लोगों ने तुम्हें? मुझे तो लगता है तुम पर कोई जादू कर दिया है। इस बात को खत्म करते हैं। अब तक मैं सबसे प्यार से पेश आया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरी बीवी की खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगा, और अगर आपको इसकी कोई कीमत चाहिए वो भी दे दूंगा। वेलकम मॉम। थैंक यू। कैसी रही पार्टी? वंडरफुल, जैसा मैंने सोचा था। बहुत एंजॉय किया। अब ये मत कहिएगा कि चिनार की माँ को देखने गई थी। गई थी, देखा, बात भी की। उसकी एक जवान पप्पो भी है। रेहान? तुम्हें कैसे पता? खूब लड़की है। बिजनेसमैन एसोसिएशन में औरतों को शामिल कर रही है। हो सकता है। उसका मिजाज बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉम, क्या क्या हुआ था बताइए ना। मुझे लगा जैसे उनको मैंने अंदर ही अंदर किसी भेड़िए की तरह काट लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे महल के जब्त होने का डर खत्म होता जा रहा है। वैसे ख्याल रखना। मामू ठीक कह रहे हैं मॉम। चिनार पे आखिर आप इतना भरोसा क्यों कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। चिनार पर भरोसा नहीं कर रही। चिनार का लाले के लिए जो इश्क है, मैं उस पर भरोसा कर रही हूँ। इश्क है ये? 2 दिन में कोई आशिक कैसे बन सकता है? इश्क अचानक ही हो जाता है। किसी और सूरत में तो ये लॉजिक, रीजनिंग या मैथ्स की किताब हो सकती है, इश्क नहीं। चिनार लाले पर कुछ ज्यादा ही आशिक है, ऐसा ही है। हैरत है, तुम्हें इसका पता नहीं चला। लाले ने शायद पहली दफा तजुर्बा किया है, लेकिन तुम तो इश्क विश्क के मामले में लाले को भी पीछे छोड़ दोगी। मैं आपके नक्शे कदम पे चल रही हूँ ना, शायद यही वजह है। क्या मतलब है तुम्हारा?
वेलकम। थैंक यू। आने का पता नहीं चला। जल्दी आ गए। मैंने बोला था शाम के लिए मैंने कुछ चीजें ली हैं, ड्राइवर लेके आता होगा। तो क्या बना रही हो? समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि स्पेगेटी हो तो अच्छा होगा। कौन है आखिर, कौन है वो लोग जो तुम्हें कह रहे हैं कि स्पेगेटी बनाओ तो अच्छा होगा? तुम जानते हो, तुमसे पहले कोई और नहीं था। जानता हूँ। क्या आप खाने पे नहीं आ रही? मैं कह चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं है। उदास, नाराज, हमेशा ऐसी ही रहेंगी क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसेरिया वापस चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रह पाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? क्या आप हमसे जुदा रह सकती हैं? चिनार ने प्यार किया और शादी कर ली। इतनी मेहनत की मैंने उसकी परवरिश पर, और वो मुझे छोड़कर चला गया। शायद उसके लिए इतना काफी नहीं था। अब वो अपनी सारी दौलत लुटा रहा है उस खानदान पर। उसके लिए मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। आपके भी हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप बर्बाद करने को कहेंगी तो मैं इस शादी को बर्बाद कर दूंगा। ये जो वादा आप मुझसे कर रहे हैं नजीब साहब, इतना आसान नहीं है। पूरा कर सकेंगे? तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? तुमने कुछ बताया नहीं। ठीक था। क्या बात है चिनार? कुछ नहीं है, बस काम है, थका देने वाला। बस कुछ टेंस मीटिंग्स। मुझसे शादी करने की वजह से? मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बीवी बन गई हो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम 1000 दफा सुनना चाहो, मैं 1000 दफा कहूंगा। मैं बहुत लकी हूँ। मेरे पापा की ख्वाहिश पूरी हो गई। वो हमेशा चाहते थे मैं खुश रहूं। और तो और, वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छा खाना बनाते थे। चलो देखते हैं तुम्हारे टेस्ट को। खाने के बाद तुम यही सोचती हो या नहीं? अरे हमें पता होता तो हम इंतजार कर लेते। कोई बात नहीं, मैं एक सूप का प्याला पीकर चली जाऊंगी। ज्यादा भूख नहीं है। ये तो अच्छा है कि नजीब भाई आपको खाने पे आने के लिए राजी तो कर सकते हैं। इन्हें मनाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत जिद्दी हैं। जब से आप घर वापस आई हैं थोड़ी बेहतर लग रही हैं। अभी और बेहतर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। ये उदास और अफसरदा नजर आकर मैं अपने दुश्मनों को मजे नहीं लेने दूंगी। ओहो, हमारे दुश्मन यही है क्या? आई एम सॉरी यूसुफ, मेरा मतलब तुम लोगों से नहीं था। तुमने हमारे महल को मदरसों और हवेलियों जैसा समझ लिया था क्या? उन जगहों पर दुश्मन अंदर ही हुआ करते थे। बात आई समझ? हाँ, हम लोग भी नए जमाने की हवेली ही में रहते हैं ना। कोई फर्क नहीं है उस जमाने में इस जमाने में। चलो भाई, बोन एपेटिट। खाना किसने बनाया है? हमने साथ बनाया है। लाले को तो खाना पकाना नहीं आता, पर इसने जल्दी सीख लिया। वैसे भी इश्क सिखाने वाली एक चीज होती है। हाँ, ऐसा ही होता है। वैसे शादी कैसी चल रही है? ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया। क्या मतलब? बिल्कुल सही। मैं ऐसा एक ब्लॉग में पढ़ रहा था। शादी के उमूमन 4 सवाल होते हैं। 1, आपकी शादी कैसी जा रही है? 2,
बच्चों की पैदाइश के बारे में क्या प्लान है? 3, आप एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं क्या? और 4, आर यू स्टिल मैरिड? हम 2 से आगे नहीं जाएंगे। तो फिर मैं भी पूछ लेता हूँ कि बच्चों के बारे में क्या प्लान है? मत करें भाई, ये तो अभी भी हनीमून पर हैं। हमारी छोड़ो और अपने बारे में कुछ बताओ हमें। खास तौर पे यास्मीन, तो बहुत याद आती हो मुझे। इनके बीच में तो समंदर भी नहीं आ सकता। न्यूयॉर्क और मिलान के दरमियान हम आया जाया करते थे। 2 बहनें होकर भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते थे। और हमारे बीच चिनार आ गया और हमें अलग कर दिया। क्या अलहदा करना, हम खुश हैं, एक साथ हैं हम। तो फिर टू योर हैप्पीनेस। तो फिर 2 न्यू लवर्स, चीयर्स। तो फिर मेरी खूबसूरत बीवी के लिए। कल रात तुमने मुझे बहुत हैरान किया। अभी तो शुरुआत है। ओके, लेट्स स्टार्ट स्वीट लेडी। कल उसी जगह पर फिर। भाभी, वो लोग कड़ी कसीली बातें कर रहे हैं। उसे तो चलो संभाल लिया, लेकिन अगर चिनार कभी वापस इस घर में ना आया तो? मुझे दौलत की फिक्र नहीं है रेहान, लेकिन चिनार इस घर में जरूर वापस आएगा, इंशाल्लाह। लेकिन मैंने चिनार को बहुत मजबूत देखा था। वो ऐसा ही है, उसका कैरेक्टर बहुत मजबूत है। वो 2 बातें नहीं करता, अपनी जुबान पर कायम रहता है। आपने अपने बेटे की मुकम्मल परवरिश की है भाभी। अलगाज होल्डिंग के हेड के लिए जो आदमी नहीं मिल रहा था, वो आदमी बनाया आपने। लेकिन देखिए कि एक ऐसे खानदान के लिए जिसको वो जानता भी नहीं था, उसने हमें बर्बाद करने की कोशिश की। वो शहजादा है, मेरा शहजादा। उनके लिए हरम में आना जाना कोई नई बात नहीं है। तुम क्यों परेशान हो? इस खानदान में तुम्हें परेशान करने वाला तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। तुम मत परेशान हो उससे, अभी तो उसके बेटे आएंगे। तुम्हारा बेटा भी तो है। अलगाज खानदान हमेशा आगे रहेगा, तुम फिक्र मत करो। सर, आपकी टैक्सी आ रही है, रास्ते में है। मैम, आपके लिए भी गाड़ी भिजवा रहा हूँ। थैंक यू। वो बहुत स्वीट थे। उम्मीद है वो लाले को हमेशा खुश रखेंगे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं। तुम बहुत चुप चुप हो बेबी, खाने पर भी खोई खोई सी थी। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। हाँ समझ गया, लाले की शादी हो गई और तुम अकेली रह गई हो। उफ करीम, बहुत हो गया। मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रहा हूँ, वैसे भी टैक्सी आ गई है मेरी। पहले मैं किसी क्लब जाऊंगा, तलगा वेट कर रहे होंगे, बाद में मिलते हैं। तुम जा सकते हो। टैक्सी का वेट कर रही हो? नहीं, आप जाए, मेरी गाड़ी आती ही होगी। करीम कहाँ जा रहा है? तुम साथ क्यों नहीं जा रहे? उसे क्लब जाना था। हम भी चलें क्या? आज रात एक सुपर डीजे आने वाला है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे घर जाना है। तो फिर किसी और दिन मिलते हैं। देखेंगे। गुड नाइट। क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। अभी छोड़ो, बाद में कर लेना। आओ मेरे साथ। So, darling, so.
میں صفائی کرنے آئی ہوں. اس وقت میری بیوی سو رہی ہے, کیا آپ بعد میں نہیں آ سکتے؟ ٹھیک ہے سر. شکریہ. چنار تو جا رہا ہے, اندر چلو. گڈ مارننگ بھائی. گڈ مارننگ ریحان. کیا یوسف اسکول گیا؟ وہ محمد کے ساتھ جا چکا ہے. اقبال ابھی تک سو رہی ہیں کیا؟ وہ بھی جلدی چلی گئی ہیں. اللہ اللہ, کہاں گئی ہوں گی وہ اتنی صبح صبح؟ آپ ہی آج دیر سے اٹھے ہیں بھائی, خیریت ہے؟ بیمار وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے اپنے کام ایڈجسٹ کر لیے تھے. آپ کو چنار کا جو یہ معاملہ چل رہا ہے اس کے بارے میں معلوم ہوگا نا آپ کو؟ تو اس مسئلے کا نہ ہی محمد اور نہ ہی تم سے کوئی واسطہ ہے. یہ تو جانتی ہوں, لیکن دستخط کی ضرورت تو ہوگی. تمہارا شوہر اور تم بھی وہی کرو گی جو میں حکم دوں گا, اور جہاں میں دستخط کروں گا تم دونوں بھی وہی کرو گے. اس میں کوئی شک نہیں بھائی. کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہم نے آپ کا کہا نہ مانا ہو؟ تو پھر میرے آنے کا انتظار کرنا. بون ایپیٹائٹ. ٹھیک ہے, پھر تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گی. ساحل پر. اور آج کے پروگرام میں کیا ہے؟ کب سے میں جاگنگ نہیں کر رہی ہوں, آج شروع کر دوں گی. پھر اس کے بعد چنار وہ پیسہ ادا کرے گا. اکرام, مجھے کنفیوز کرنے کی کوشش نہیں کرو. حیران ہوں میں تم پہ. ہماری مرحومہ امی ایسے نہیں کہا کرتی تھی. تم لڑکا ہوتی تو ساری دنیا تمہارے سامنے کانپتی. میں عورت ہوں, پھر بھی دنیا میرے سامنے کانپتی ہے. ٹھیک کہا. تو پھر تم نے اپنے اقتدار کو واپس اسٹیبلش کرنے کے لیے چنار کے ساتھ کیا سودا کیا؟ میں گاؤں دیہات سے نہیں آئی ہوں, میں سودا نہیں کرتی. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. ٹائم اتنا ہو گیا کہ یاسمین اٹھ گئی. بہت صبح ہے, پوری رات سو نہیں پائی. یہ تو اچھا ہوا. تو کیسا تھا ڈنر؟ صحیح تھا. کہاں گئے تھے ڈنر پر؟ کہاں کھائیں گے, لالے اور چنار جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں بس وہیں. اب اور کتنا رہیں گے وہ وہاں پر؟ ایسا لگتا ہے کہ چنار نے اپنے خاندان سے فیملی شادی کی کبھی اجازت نہیں دے گی. تمہارے داماد کی عشق کی خاطر تم اپنے تخت سے اتر کر بغیر پیسوں کے رہ جاؤ گی. تم سمجھ جاؤ گی یہ کام ہمارے لیے کامیابی نہیں لائے گا. بول دیا اکرام, میں جا رہی ہوں. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. رمزی, چڑیا باہر آ گئی کیا؟ ٹھیک ہے, میں فوراً آتا ہوں. میں جلدی میں ہوں, مجھے جانا ہے. ہش 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 ہش. کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا, سوکھے ہوئے باجرے اور سو کر دیر سے اٹھنے والی بیوی کا. رات دیر سے سوئے تھے تو صبح کام والی بھی نہیں آئی, کمرہ پھیلا رہ گیا. میں کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے, یہ سب چھوڑو اور بیٹھ جاؤ ذرا. بولیں, سن رہی ہوں. میں یہاں تمہارے ساتھ گپیں لگانے نہیں آئی ہوں. تم وہ ہو جس نے چنار کو مجھ سے چھین لیا ہے. ہم نے صرف شادی کی ہے اور کچھ نہیں. وہ ہمیشہ صرف آپ ہی کا بیٹا ہوگا, بدلے گا نہیں کبھی بھی. کیا بدل نہیں سکتا؟ بدل تو گیا ہے, خود ہی دیکھ لو.
दरवाजा पटक कर वो हमें छोड़कर चला गया था। वो सिर्फ नाराज है, लेकिन यकीन करें ये नाराजगी कुछ ही वक्त की रह गई। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ अहम बातें बताऊंगी, फिर देखती हूँ मेरे इंकशाफात के बाद तुम ये शादी निभा पाओगी या नहीं। फराद डियर, टेम्पो को थोड़ा आहिस्ता कर लेते हैं, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। परेशान मत हो जमरुद मैडम, जो हमारा नॉर्मल टेम्पो है हम उससे आहिस्ता ही भाग रहे हैं। क्या ये रिदम ठीक है? वंडरफुल। जमरुद मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नजीब अल्फाज हूँ। नेक तमन्नाओं के साथ गुड मॉर्निंग। कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। अभी करनी है? जी अभी। मैडम, मैं आपका आगे इंतजार करूंगा। आई विल कैच अप विद यू डियर फराद। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। परेशान ना हो, मेरी बात मुख्तसर है। जैसा कि आपको मालूम है, बच्चों की शादी को ना तो आप और ना ही हम मान रहे हैं। हम एक टॉलरेंट और मुहज़्ज़िब खानदान वाले हैं, आपके खानदान की तरह सख्त नहीं। जाहिर है। मेरे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? बहुत खूब। और आप हमसे हमारी दौलत मांगने की हिम्मत आखिर कहाँ से ढूंढ रही हैं? मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मांगे भी नहीं। फालतू में उम्मीद ना लगाएं। हमारी दो फैमिलीज ये दिन और रात जैसी हैं। जो ये सोचे कि दिन रात से मिल जाएगा वो नादान है। मैं चाहता हूँ ये शादी टूट जाए, पैसों को भी भूल जाओ। वरना आपको पछताना पड़ेगा। बहुत पश्चिमान होंगी आप। तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे से तुम्हारी कीमत मांगी है, 20 मिलियन। क्या तुम्हें इसकी खबर थी लिटिल लेडी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेच दिया। ये तुम कैसे कर सकते हो चिराग? मैं तुम्हारे सामने अब कैसे करूंगी? नहीं करूंगी, अब नहीं कर सकती। हमारे इश्क को नापाक कर दिया तुमने। मेरी लाले, क्या तुम घर पर हो? मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मीटिंग से पहले मैं तुमसे ये बात करना चाहती थी। कैसे हो चिनार? Things are messed up. कैसा हो सकता हूँ? मैं जानती हूँ और बहुत अफसोस है, लेकिन तुम जानते हो कि हर काम मेरे भाई के कहने पर होता है। मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरा फैसला फाइनल है कि मैं अपना हिस्सा लूं और चला जाऊं। कम ऑन, तुम अपने इश्क की प्रोटेक्शन कर रहे हो, ये अच्छा है, लेकिन ताल्लुक तोड़ने से पहले थोड़ा रुको, ठीक से सोचो। तुम अपने पीछे क्या क्या छोड़ रहे हो, समझ तो रहे होगे तुम। मेरी जायदाद पर नजर नहीं है, मैं अपने प्यार और अपनी खुशी के पीछे हूँ। लेकिन चिनार, जो तुम पीछे छोड़कर जाओगे वो सिर्फ पैसा या जायदाद नहीं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे अंकल, हम सब से तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। अंकल का फैसला तो जान गया हूँ,
लेकिन महमद का और आपका फैसला भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये तुम जानते हो। मैं तुम्हारी आंटी हूँ, साथ बड़े हुए तो बहन भी। भले ही तुम हमें हक पर भी लगे तो भी हमारा सपोर्ट करना तुम्हें मुश्किल है। जानता हूँ। मैं आज अपने बाहर वाले सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है मैडम। क्या हुआ, तुम जल्दी वापस आ गई? क्योंकि एक ऑकवर्ड मीटिंग हुई थी इसलिए। खैरियत है? नजीब अलगाज से मुलाकात हुई थी। उसका क्या मसला था? चिनार जो मेरी मदद कर रहा है वो उसके बीच रुकावट बनने वाला है। चालाक लोमड़ी। अगर खेल उस चालाक लूमड़ी के हाथ में है तो हमारा हाल बहुत बुरा होगा। इकराम, वैसे भी मैं बड़े गुस्से में हूँ, अब तुम भी मत शुरू हो जाना। दुआ करो तुम्हारे दामाद आजाद हों। लड़के के खानदान की सूरत हाल के बारे में कोई रास्ता ढूंढ के लाले से पूछना जरूरी है। सवाल पूछो तुम, खोखली उम्मीद मत रखो, वरना ये कहानी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। चलो ये काम खत्म कर लेते हैं। चिनार कहाँ है? असिस्टेंट को बुलाने गया है। आप कैसे हैं भाई? क्या आप थोड़ा आराम कर पाए? आराम कैसा? सुबह महल में ही रह गए थे, आपने कुछ आराम किया? आराम करना हम पे हराम है। एक बेअदब को उसकी हद बता दी मैंने। मैं क्या करूंगी मेरे? नहीं चिनार, नहीं। आपका इंतजार हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आयशा मैडम, मेरे अपार्टमेंट के रिसेप्शन से मुझे कनेक्ट कीजिए। ठीक है सर। तुमने मेरी कीमत कैसे लगा ली चिनार? आखिर कैसे? तुम लेट हो। एक इम्पोर्टेंट काम था। इस मीटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, शुरू करें क्या? जाहिर है, अगर तुम चाहते हो तो हम शुरू कर लेते हैं। डियर मेंबर्स ऑफ बोर्ड, एजेंडा आप जानते हैं। मैं ब्रीफली कह रहा हूँ। तशकरान फैमिली के बैंक का लोन जो कि $20 मिलियन है, उसको कोर करने के एजेंडे के लिए मैं वोट कर रहा हूँ। कोई सवाल करने वाला ना हो तो शुरू करें। मेरा वोट इसके अगेंस्ट है। हमारा वोट भी अगेंस्ट। तो मामला बिल्कुल वाज़ेह है। ये रिजल्ट मैं वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फिर मैं भी। सर, आप जिस कॉल के इंतजार में थे वो कॉल आ गई है। दीजिए। आपकी बीवी अपार्टमेंट में ही थी चिनार साहब, लेकिन सच बोलूं तो वो ठीक नहीं लग रही थी। वो बीमार तो नहीं? समझ गया, शुक्रिया आपका। मेरा जाना जरूरी है, फैसला आपके सामने है। हर चीज के बावजूद ये गारंटी दी जाएगी। एजे मैडम, जो जरूरी है वो करें। क्या जरूरी है जो वो करेगी चिनार? मुझे बताओ ना। अपना हिस्सा लेकर मैं होल्डिंग से अलग हो रहा हूँ। किसके लिए? किसकी खातिर? मेरे इश्क की खातिर। जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ उसकी खातिर। अब आप समझे मुझे?